एक कंपनी है एस जी मार्ट. I don't know whether you guys heard about it or not. It's a very interesting company, and they recently did a con call. I want to, give you a sense of the con call. It's a very great con call. This is the first con call they did. SG Mart is SG stands for, so they are taken over by Sanjay Gupta. संजय गुप्ता, एसजी स्टैंड फॉर संजय गुप्ता. दे आर फॉर्मली नोन एज किनटेक रिन्यूएबल. तो एक छोटी सी कंपनी थी, 2-5 करोड़ की. एंड दे बोट बाय एपीएल अपोलो के प्रमोटर ने. तो उनकी फैमिली मेंबर्स दे बोट द stake in the company, and then they did the preferential, and then they started a new business into this. So this is the first con call, and this is very very important con call, that like how APL Apollo, which is the one of the largest wealth creator in Indian steel space, you can say, how they think about the new businesses and what they are doing with the SG Mart. So SG Mart is like SG Mart is a B2B. It's like India Mart for steel currently. और इंडिया मार्ट इन द सेंस कि यार आप बी टू बी होलसेल का धंधा कर रहे हो. बट इन इंडिया देर इज a huge requirement of the steel products, but there is no one in India who is doing this on the proper manner. मतलब अगर हम 100 मिलियन टन बना रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ही इज डूइंग ओनली 30,000 टन पर मंथ, विच इज अ वेरी 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 मिनिस्क्यूल अमाउंट. सो दैट्स वेयर दे फाउंड कि यार यहाँ पर स्पेस है, एंड वी नीड टू डिस्टर्ब दिस स्पेस. And this concall highlights how they think about the this, and they shared their 2030 vision. So this is the latest review of APL Apollo, and last year's vision establishing India's largest trading company. And you must read this. मैं केवल highlights बता रहा हूँ, but one should must read about this, like how to think about a business which is into like 2 to 2.5 3.5% का इनका मार्जिन का धंधा है, होलसेल का काम है. सो अली भाई और पार्थ भाई, दे जस्ट बाई द जैसे JSW स्टील है, देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स, फॉर स्मॉल प्लेयर्स, एसएमई प्लेयर्स हैं. तो दे बाई स्टील, बिल्कुल रो स्टील, एंड देन दे सेल इट टू द अदर प्लेयर्स. सो अभी तक कोई इतना बड़ा इसमें प्लेयर नहीं था. एंड चाइना, साउथ कोरिया, जापान में जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग हब्स बढ़ते हैं, तो यू नीड अ ट्रेडिंग जायंट्स जो हु कैन कोरिलेट एवरीथिंग. कि यार भाई, इस बंदे को, जैसे आज रायपुर में JSW स्टील के पास माल नहीं है, बट टाटा स्टील के पास माल है, तो हाउ वन कैन कनेक्ट देम टुगेदर. And that's where the SG Mart come into the picture, and they want to create the India's largest trading company, and steel is what they know. So they started with the steel. Now they will also enter into the non-steel products. So Apollo का brand value काफी ज्यादा है. So what they are doing is, पहले स्टील को डिस्टर्ब करो. वंस यू आर इनटू तो उनका ऑलरेडी एपीएल अपोलो ट्यूब्स का पूरा सर्किट है, डिस्ट्रीब्यूटर का, रिटेलर का उनका. तो वहां से दे आर स्टार्टेड प्लानिंग प्लग इन्स एंड प्लग आउट्स ऑन द टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म. सो लॉन्ग स्टील से लेके फ्लेट स्टील से लेके buy from steel producer directly, and then sell it to B2B. Second thing what they are doing in the business is B2C. B2C, they identified कि रीबार्स और लाइट स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दिया, एंड ब्रांडेड सेगमेंट में घुस के और उनको बेचना है. तो वो भी कमोडिटी प्रोडक्ट ही है. सो बेसिकली दे आर प्लेइंग द कमोडिटी साइकिल इन अ टेक्नोलॉजी वे. So now the important part of this whole thesis, like how why this business will survive, and I will also tell you some interesting things in this business. That India का largest distributor, which I told कि 25,000 टन मंथ करता है, जबकि हम we have a capacity of 120 million ton, and we are expanding to 300 million ton by 2030. So that's a huge jump. 2025 में जितनी कैपेसिटी आएगी ना, उसको भी आप केवल ट्रेड कर लो, तो that's a huge number. Now निमेश, सबसे पहले आप आगे जाओ, उसके पहले एक बताओ कि इसके जो पूरा वैल्यू चेन है स्टील का, कि आयरन ओर से बनता है, इसमें टाटा स्टील है जो भी बनाते हैं, उसके जो आगे जाता है, उसमें ये कहाँ पे फिट हो रहा है? So they are the first one. तो ये क्या करेंगे, देखो यहाँ JSW, they are doing business with JSW Steel, NMDC Steel, Jindal Steel, SAIL, and some import from the which we are doing in SG Mart. तो इन्होंने import कर लिया कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो इनको लग रहा है यहाँ पे सेलिंग हो सकती है. अच्छा। And now what they are doing is, they are already in 6 to 7 months only. अभी केवल 6-7 महीने हुए हैं धंधा स्टार्ट हुए, they are already doing 50,000 60,000 टन a month. तो ये लोग क्या करें इनसे, जो माल लिया, JSW दे NMDC माल लिस्ट लिया? इन, और हाँ। टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे इंडिया मार्ट है ना, टेक्नोलॉजी हाँ। बेस्ड प्लेटफॉर्म, एंड देन ठीक दे है। सेल इट. और बेचते किसको है? बेचते जो सेम एसएमई कंपनीज हैं, या जैसे मान लो जेएसडब्ल्यू का ही दूसरा प्लांट है, तो टाटा हाँ। स्टील का वहां पे माल बना हुआ है और जेएसडब्ल्यू खरीदना है, दे आर नॉट गोइंग डायरेक्टली. या बहुत सारे एसएमई प्लेयर्स आर इन इंडिया, इज ह्यूज एसएमई प्लेयर्स ऑफ, जो छोटा छोटा बना रहे हैं. हाँ। तो हाँ। कहीं हाँ। कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है, कहीं क्या कर रहा है, कहीं क्या कर रहा है, तो वहां पर कोई बीच में बड़ा प्लेयर नहीं है जो इनको सबको मैनेज करे एक साथ, एंड एक कॉस्ट, अच्छी कॉस्ट भी मिले, क्योंकि दे बाई एट अ ह्यूज वॉल्यूम्स.
तो वहां पे एक अच्छी कॉस्ट मिल जाती है, तो उसके भी लिए भी सही पड़ता है, इनके लिए भी सही पड़ता है। एंड व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द वर्किंग कैपिटल विच वन नीड टू अंडरस्टैंड, विच इज the cherry on the cake of this business, because everyone think that it is a business of commodity, but it is not, because working capital cycle of this is just 0 to 10 days, just 0 to 10 days in the commodity cycle. Inventory जो वो रखते हैं वो 0 to 10 days की रखते हैं, एंड दे टेक क्रेडिट फ्रॉम द स्टील सप्लायर कि भाई हम तेरे को आराम से देंगे, एंड जो ये माल बेचते हैं उससे कैश लेते हैं। सो देयर कंप्लीट साइकिल इज जस्ट 10 days। जबकि सुपर है आपको, मतलब। इट्स अ तो वेरी सरप्राइजिंग है ना। अभी मैं आपको आप टाटा स्टील दिखाता हूँ, ठीक है ना। सो व्हेन यू गो टू टाटा स्टील, गो टू रेशियोज, रेशियोज यू विल सी कितना है। दिस इज द फाइनेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो करेक्ट। यू आर गोइंग 60 days, बट अगर आप वहां पर जाते हो तो यू हैव 6 टाइम चर्न, यू कैन डू 6 टाइम चर्निंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल, एंड द वर्किंग कैपिटल वेयर द पीपल स्टक इन द होल कमोडिटीज साइकिल। सो व्हाट दे डिड इज कि वो बोलते हैं कि भाई हम एक ही पैसों से 15 to 20 टाइम्स चर्न कर सकते हैं सेम, एंड वी विल क्रिएट अ 30 to 40% ROC बिजनेस, एंड दैट्स a huge number for any commodity company। बिकॉज आप अगर इसको देखोगे, अगर हम साइकिल कैसा भी माने, बट दे आर डूइंग ROE ऑफ 6.5, ROC 7%, दे आर टारगेटिंग ROC ऑफ 35 to 40%, इट्स वेरी वेरी 5 times हायर देन द टाटा स्टील। एंड देयर सेकंड बिजनेस इज सर्विस सेंटर क्रिएट करना। तो जैसे मान लो कि यार मुझे पता चल गया कि यार यहाँ पर धंधा अच्छा है, वहां पर हमारी डिमांड अच्छी आ रही है, तो दे विल क्रिएट अ सर्विस सेंटर अक्रॉस इंडिया। तो मान लो कि यार कुछ वैल्यू एडिशन करके चाहिए, तो लाइक JSW स्टील इज क्रिएटिंग आयरन ओर। नाउ एनीबडी देयर वांट्स कि यार हमारे को लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट या फ्लैट स्टील प्रोडक्ट कुछ चाहिए, तो आयरन ओर वहां से लिया, दे विल क्रिएट द इन द सर्विस सेंटर एंड देन विल सेल इट। सो देयर द वैल्यू एडिशन विल कम इनटू द पिक्चर, वहां पर भी ये 3-3.5% ले लेंगे, और वहां पर भी इनकी कॉस्ट जो है फॉर क्रिएटिंग अ कैपेक्स इज वेरी वेरी लेस। सो वो 10-15%, 10 करोड़ 15 करोड़ का इनका सर्विस सेंटर का बिजनेस होता है। सो दे आर अभी करंटली 2 सर्विस सेंटर है, दे विल एक्सपेंड इट टू 5 to 6 इन नेक्स्ट 2 to 3 months। एंड फिफ्थ सर्विस सेंटर दे आर एंटरिंग इनटू दुबई। वो आईपीएल अपोलो वाली स्टोरी, वहां पे भी उन्होंने दुबई में स्टार्ट कर दिया था बिजनेस, वहां पर भी अच्छा मार्जिन मिलता है, तो दे अगेन स्टार्टेड देयर सर्विस सेंटर इनटू दुबई। सो वहां पर क्या होगा, दे विल गेट द मार्जिन ऑफ 4 to 5% EBITDA मार्जिन। Now what they are targeting is they have already identified 15 new location, so by 2030 they are planning 100 सर्विस सेंटर, एंड सर्विस सेंटर में 4 से 5% का मार्जिन आता है। वहां पर आपका 2 2.5 से 3 3.5 टके का मार्जिन आ रहा है, यहाँ पे आपका 100 सर्विस सेंटर 4 से 5% का मार्जिन, एंड देन इट विल लीड टू ROCE ऑफ 30 to 35% ऑफ द कैपेक्स ऑल्सो। तो वर्किंग कैपिटल तो आप चर्न कर रहे हो जो अलग ही है, उसके अलावा जो आपने सर्विस सेंटर में जो पैसा घुमाया उसका भी 30 to 35% ROCE है आपका। सो दैट्स द काइंड ऑफ स्केल दे आर थिंकिंग, एंड विजिबिलिटी है उनको कि भाई जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसमें डिमांड है 3 से 4 लाख करोड़ की। दे आर करेंटली डूइंग जस्ट, अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर आप SG मार्ट का रेवेन्यू आज देखते हो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी है ना। क्या किया इन्होंने, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दे डिड 0 करोड़ इन March 2023, 150 करोड़ इन June, 500, इट्स 5 times, इट्स 3 times, देन 750, 1278, और जून में इलेक्शन और ये बारिश के कारण थोड़ा सा इनका था, बट Q2 इज वेरी सुपर अगेन, दैट विल कम सुपर। So you can see the scale what they are doing, because it's a wholesale business, but they are growing at a very fast pace. And अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये इनका टारगेट है जिसके लिए मैंने पूरी स्लाइड खोली, और दिस इज दैट्स व्हाट मेक दिस कंपनी इंटरेस्टिंग इज कि दे आर प्लानिंग द 2030 में दे आर प्लानिंग 50,000 करोड़ का टाइप टॉप लाइन, 50,000 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ टॉप लाइन। अब 20 डेज मेन का 20 डेज का एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल भी पकड़ते हो तो उनको केवल 2500 करोड़ चाहिए, दे ऑलरेडी रेज 2500 करोड़। तो जब तक 2500 करोड़ तक तो इनको पैसा रेज करने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट्स द काइंड ऑफ वैल्यू दैट they will create, and over 7 to 8 years, and they are profitable from the day one, and that's where the द मलाई इज कि यार भाई पहले दिन से धंधा प्रॉफिटेबल है। करंटली 1500 करोड़, करंटली दे आर एट समवेयर डाउन द लाइन, आपका अगर आप देखोगे 2600 करोड़ का धंधा है। वो 2600 करोड़ का धंधा दे आर सेइंग 6 years में, March 2024 से March 2023, they will grow it 25 times in terms of sales. In terms of EBITDA, if we consider 3% only, then they will get at around 1500 crore EBITDA, which is a very huge number.
मतलब आज आप 1500 करोड़ का जो EBITDA की आप बात कर रहे हो ना, यू विल गेट लाइक 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। currently it's थोड़ा सा bit pricey, but the company, the growth they are seeing is very huge, and you will not get it. So अभी आप देखो कंसोलिडेशन चल रहा है, so they bought it the at certain level, then they did preferential। तो मैं आपको एक वो भी बताता हूँ कि इन्होंने प्रेफरेंशियल किया, एंड एवरीबडी इन द एवरीबडी फ्रॉम द BSC, मतलब BSC के जो पुराने लोग जितने भी हैं, अगर आप देखोगे तो दे आर एवरीबडी इज पार्टिसिपेटेड इन द, दे डिड नॉट चूज द वाया VC और PE, उन्होंने चूज नहीं किया, बट व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने नॉन प्रमोटर से पैसा उठाया। और आपको मैं दिखाता हूँ लिस्ट, देखो आप नाम, आप जो नाम बोलोगे वो नाम है। प्लूटस, वल्लभ बंसाली, सेज वन, विजय समित वर्तक फंड, लेकिन अबेकस, दो अबेकस के फंड, 361, मुकुल महावीर अग्रवाल, अशोक गोयल, माधुरी केला, मधु केला वाइफ, साकेत अग्रवाल, मनीष, संजय गुप्ता, धूत इंस्ट्रूमेंट, आप देखो विकास गुप्ता, विशाल अग्रवाल, आप देखो जितने बड़े नाम हैं इंडिया में, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रेफरेंशियल। At what price? दे डिड इट एट अराउंड 5000, बट उसके बाद स्प्लिट और बोनस हो गया है। तो स्प्लिट इज लाइक 1:10, तो 500 रुपए का भाव हुआ, फिर देन बोनस तो 250 का भाव हुआ वैसा। सो 250 इज करंटली एट डबल, एंड दे डिड इट इन November 23। तो देर इज नॉट, मतलब अभी तक कुछ रेस हुआ नहीं है, दिस इज द फर्स्ट कॉन कॉल दे डिड, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यार। आप ये इसकी कॉन कॉल पूरा पढ़ोगे ना, सो दे विल एंटर इनटू नॉन स्टील प्रोडक्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग, बाथ फिटिंग, ब्रांडेड, इस सब में घुस जाएंगे। देर इज नो वन इन द होल इंडिया विच इज डूइंग, यू नो, इतने बड़े स्केल पे कोई भी नहीं कर रहा है, सो देयर द मार्जिन विल मच हायर अगेन। So this is kind of growth they are projecting. Currently, they are at 2,500 crore. Next year, FY25, they are planning 7,000 8,000 crore of top line. Okay, and FY27 में 17 से 18,000 करोड़, तो 7-8 हजार करोड़ पहले, FY25 12-13 हजार करोड़ नेक्स्ट ईयर, एंड देन 17,000 18,000 इन FY27, 50,000 करोड़ FY30। So 25x from what they are doing right now. That's what they said in the con call. Even if they do 40,000 crore, it's a very huge number for Indian company to disrupt the B2B space. So I think this is the company which I think has a lot of potential, and I will suggest everybody. This is not a recommendation, but you just read this con call. It's a very very good con call कि how to think about working capital, working capital के बारे में कैसे सोचते हैं, धंधा कैसे बनता है। So they are doing 2500 करोड़ की working capital पे 50,000 करोड़ का धंधा। Nobody in India, I think, even match this. No, I think they followed the same discipline with APL Apollo as well. I think post-COVID, उनका credit cycle, working capital days significantly improve हुए थे कि अब माल credit पे देंगे ही नहीं। I think this is the kind of story which I like कि भाई जहां पर है ना मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट हो, जहां पर धंधा भी जोरदार हो, और वहां पर यार सॉलिड ग्रोथ दिख रही है। ये कंपनी के प्रमोटर्स ने एक सिमिलर कंपनी भी के साथ किया था, अपोलो ट्राइकॉट करके। सो उसको भी ऐसा ही किया था इन्होंने, टर्न अराउंड। सो उसको एक फालतू ही, मतलब नॉन कोई धंधा नहीं था उस कंपनी में, उसको खरीदा, फिर उसको बनाया बिजनेस को स्टार्ट से उनके सन ने, संजय गुप्ता के। सो अपोलो ट्राइकॉट इज नाउ मर्ज्ड विद एपीएल अपोलो, सो अब अलग से नहीं दिखेगा आपको, बट उसका जो प्रोडक्ट था वाज फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली। सो उसका पूरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो था वो 35% EBITDA मार्जिन था। सो दे उसका वैल्यूएशन मैंने थोड़ा बहुत पार्ट पार्ट लिया था, तो इसमें मर्ज हो चुका है। तो अभी जो आप देखोगे अपोलो ट्राइकॉट का थोड़ा प्रोडक्ट इसमें पूरा मर्ज हो चुका है, तो इसका मार्जिन बम्प अप हुआ है। लेकिन हाँ, ये लोग प्रमोटर्स पहले कर चुके हैं और ये लोग सिमिलर 2-3 कंपनीज के साथ करते रहते हैं, तो इनके पास फंड फ्लो है और प्रमोटर का एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। सो आप इसका देखोगे वो तो एक क्रेडिबिलिटी है। CAGR आप देखो लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर in the business like this, they are doing crazy. अग्रीड। क्या अली भाई, ठीक लगी कंपनी? No, no, my evening read is sorted out now. Thank you. I'm going to read the con call with my evening coffee. So it's a आज very SG Mart का con interesting call con है। call. Very interesting con call. Agreed. Everybody should read कि
how to think, because sometimes we also ignore working capital cycle. But in case of commodities or in case of जैसे डॉलर इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं जो चड्डी बनियान बनाने की कंपनी है, so their working capital cycle is a very very important part to play out. because अगर मान लो यार पेज इंडस्ट्रीज 30 दिन में पैसा घुमा पाता है ना, एंड वो वहां पर अगर 120 दिन ले रहा है, तो पेज इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू विल बी वेरी वेरी हायर सिमिलर ग्रोस ब्लॉक पे और सिमिलर बैलेंस शीट पे। तो वो बहुत ही चीज है जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। सो गाइस